हाय एवरीवन, इट्स मैत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? और बताइए चल क्या रहा है? कोरोना चल रहा है? हाँ, वो तो भी चल ही रहा है और काफी लंबा चलेगा भी वो, है ना? So the thing is that right now most of we people were staying at our home and we are just avoiding to go outside unnecessarily. हाँ, मतलब वो काफी जरूरी भी है. So today that's why I'm going to tell you the 10 things that you can do while you're staying at home and can make this 2020 more productive. हमें कुछ और भी करना पड़ेगा to deviate the topic from this corona to other things. And yeah, so that's why I'm going to tell you these things, and you can also make money from some of them, but obviously that's gonna require one thing from your side. Any guess what? Obviously, it's your wish, your desire to do something and to make the most of your time and to make it productive. Okay, so the very first thing is that you can do is start reading books. See, right now, I have heard many people saying, oh, we can't right now travel outside and we just love traveling. Oh, then why don't you start reading books? Don't you know that, books will let you travel miles apart, without moving a bit. ऑब्वियसली उसमें कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमसे माइल्स अपार्ट है, बट हम वो बुक पढ़ के हमें वो मिल सकते हैं. ठीक है. एंड as I have not said, somebody has said that books are our best friends. So, and I do believe that obviously books always makes you better at conceptualizing the things. So yeah, if you're a beginner, I'll suggest you to go more for fiction. अदरवाइज आप अपनी पसंद की कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं. और अभी जो कंडीशन है उसके अनुसार मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए ऑन टाइम मैनेजमेंट, ऑन प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल. और ऐसे सबसे अच्छा है, अभी जो सब कहते हैं ना हम लोग स्ट्रेसफुल है काफ़ी, तो आप कोई ऐसी बुक पढ़िए जो which make you feel light and happy. Like there are these 2-3 books that I thoroughly enjoyed. The Art of Racing in the Rain, then Dancing Over the Hill, and Tuesday with Morrie. It's my quite personal favorite. Every time I read it, I enjoy it. Okay, so you can also read such type of books. And the other thing is that if right now अगर आपके पास इतनी books available नहीं है, if you are short of the books, what you can do, there are many great books that are available on Kindle and they are available at free of cost. You just have to browse there that Kindle free ebooks or Kindle ebooks at 0 rupees, and there are many books available. Like right now I am also reading a book, this Think and Grow Rich by Napoleon Hill, and I am reading it there at 0 rupees. तो आप भी try कर सकते हैं. ठीक है. The second thing is that start selling online courses. अगर आप में कोई भी skills है, yoga, karate or zumba, and if you're certified with that or even academics or something, you can start selling out your courses. I know it's not a piece of cake to sell online courses initially when nobody know about you, and so you will find very difficult to get clients. But then starting में आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अपना कंटेंट बना लीजिए, आप कोई वीडियो बनाइए, आप उसे यूट्यूब पे या कहीं भी आप सोशल साइट पे उसे अपलोड कीजिए. ओके. एंड देन वंस पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू, उन्हें आपका काम पसंद आएगा, एंड व्हेन यू गेट एन ऑर्गेनिक ग्रोथ, then there the time you can market up your product or your any services, whatever you want to sell out. And then there are more chances कि लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज जल्दी परचेस कर लें. Obviously it will take a due time, but अगर आप consistent रहते हैं, then I do believe that अगर आप करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, and obviously patience is a thing that will require the most in that. तो अगर आप करते हैं तो obviously I'm pretty much sure that at one point you will get n number of clients in future. So yeah, try it out that. Okay. Now the next thing what you can do is, okay, do you love teaching? If yes, start teaching online. If you love teaching, if you want to be a teacher, then I think this 2020 is the best time to start teaching online. See, हम सभी को पता है that now the market is going to be more online. It's going to be more digitization, and in this 2020 people are spending more time online. So then what are you waiting for? मतलब आप भी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका बेनिफिट उठाइए. ठीक है. तो if you love teaching anything, then start teaching online as soon as possible. ठीक है. Now the next thing, any guesses? Okay, tell me, do you know how to make sketches, illustrations? If yes, then don't wait and start making it for some agencies. And if you're pretty good at that, then to just contact to any newspaper agencies or something,
and start making caricatures or cartoons or illustration something for them, because they make a very good payment for that. So if you are good at making this caricatures and all, try to contact any newspaper agencies. And else what you can do that, अगर आप काफी अच्छे हैं ये डिजाइनिंग लोगोस एंड एवरीथिंग में, तो आप ये काम घर बैठे बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड कैन गेट अ वेरी गुड अमाउंट. सो या, you can do either of this work. Okay, now the next thing is that अभी मैंने आपको कहा कि आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज दे सकते हैं, तो वैसे ही आपको ऑनलाइन कोर्सेज लेना भी तो चाहिए ना. हाँ, बिकॉज पता है क्या, देर आर मेनी कोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन. आई मीन दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. आप चाहे एडेक्स पे सर्च करें या उडेमी पे सर्च करें या कोई भी दूसरी वेबसाइट पे, there are many courses that are available, and the best thing is that they are available at free of cost, at least if you don't want any certificate. I mean, आप अपना इंटरेस्ट टाइप कीजिए एंड प्लस लिखिए वहां पर कोर्स, लाइक फ्री ऑनलाइन कोर्स, बी आउट ऑन मॉडर्न मॉडर्न आर्ट या फिर फोटोग्राफी या फिर जिसमें भी आपका शौक है, राइट. एंड आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे. सो स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा कोर्सेज देखेंगे तो मे बी ये आपको हेल्प आउट कर सकता है टू फाइंड योर पैशन एज वेल. So start watching these courses. Okay. Now the next thing is something. Tell me, okay, what's it? Okay, tell me that what you guys are doing while you're staying at home. I mean, you must be also doing many things. So what you guys are doing, please let me know in the comment section also. ठीक है? Now see, the next thing is that, I mean, the thing that is most trending right now is something called as freelancing. I personally believe that if you stay at home, then, and if you want to earn a very good amount of money, you can start freelancing. I mean, be it content writer or copywriter or web developer or anything. Obviously skills तो सब में होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है सब में, बट वो हमें रिकॉग्नाइज करने की तो जरूरत होती है ना. तो पहली बात तो आप अपने स्किल रिकॉग्नाइज करो, उसको डेवलप करो, एंड देन ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग में थोड़ा आपको मार्केटिंग और नेटवर्क भी चाहिए. बट एक बार व्हेन यू गेट सेट आउट देयर ना, देन देयर इज नो लुकिंग बैक. सो या, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग. Or else what you can do, that if you are very good at languages, I mean, if you have a good command over languages, I mean, not just English and Hindi, but other languages also, then you can work as a proofreader. Okay, so you can try either of them. ठीक है? Now the next thing is that, have you attended any of the webinar yet? If not, then don't just waste your time and start attending webinars. Yeah, see, like I'm a company secretary, so mostly the webinar that I am attending are those which are conducted by my institute. फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अपनी पसंद के, मतलब मेरे इंटरेस्ट के जो वेबिनार्स है मैं वो देखूं. ठीक है, जैसे मैंने अभी रिसेंट में एक राइटिंग के ऊपर देखा था. तो आप ऐसे, क्योंकि ऐसी कई वेबिनार्स है जो ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री में. ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, आप ब्राउज कीजिए, आपका जो भी इंटरेस्ट है आप लिखिए, प्लस आप लिखिए फ्री वेबिनार, तो आपको n नंबर ऑफ वेबिनार्स वहां मिल जाएंगे. फिर होता क्या है, जब आप वेबिनार स्टार्ट करते देखना, तो इनिशियली 10-20 मिनट्स में हमें समझ में आ जाता है कि क्या इज इट वर्थ टू वॉच द होल वेबिनार. एंड अगर आपको फिर वो वर्दी लगता है, आप उसे पूरा देखते हैं, तो मोस्टली एट द एंड में वो क्या ट्राई करते हैं, दे ट्राई टू सेल एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज. तो देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज वेबिनार अटेंड करने से होगा क्या, एटलीस्ट यू विल गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ योर इंटरेस्ट. ओके, एंड दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग ना, तो आप ये स्टार्ट कीजिए देखना, क्योंकि काफी हेल्पफुल होता है. और नॉलेज किसी भी तरह से बढ़े तो कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि कई तो ऐसी चीजों पे वेबिनार है जो हमें पता भी नहीं होती है. तो start doing that also. ठीक है? Now the next thing you can do is, I mean, something that I really like, and that's called as writing, journaling or blogging. Every person has a story inside them and they want to share it with the world. And अगर आपको भी ऐसा है तो आप राइटिंग स्टार्ट कीजिए. और सबसे बेस्ट तरीका तो शुरुआत में ये होता है कि आप क्या कीजिए, आप जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए. क्योंकि पर्सनल जर्नल में क्या होता है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब आपके एक्सपीरियंसेस, आपके टू डू लिस्ट, आपके एम्स, आपके गोल्स, मतलब आप अपने पर्सनल जर्नल में कुछ भी लिखो, अपनी वीकनेसेस, आई मीन वट एवर द शिट यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इन अ पर्सनल जर्नल. सो स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग. और एल्स आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार्ट राइटिंग डेली डायरी एट नाइट, बिकॉज आई फील दैट्स द बेस्ट वे टू असेस आवरसेल्फ कि वेदर मीन्स हम वो काम कर रहे हैं जो हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं.
तो अपने आप को रिव्यू करने का वो भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो इसी में है वो ये है कि इफ़ यू वांट टू मेक मनी, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन आप बस उठे और बोले कि ओके नाउ आई एम गोइंग टू बी अ वेरी बिग राइटर। ऐसे एकदम से नहीं होता है, क्योंकि राइटिंग क्या है, एक आर्ट है, एक स्किल है, ठीक है। और कोई भी स्किल है वो कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा उस फील्ड में इसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एकदम से तो एक्सपर्ट भी नहीं हो सकते, तो प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि आप इनिशियली क्या कीजिए, शॉर्ट स्टोरीज लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए, पोएम्स लिखिए, या तो आप उसे किसी सोशल नेटवर्क पे डालें, या तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या कीजिए, आप लिखिए और आप उन्हें न्यूज़पेपर एजेंसीज के पास भेजिए, ठीक है। उन्हें अच्छी लगती है तो वो पब्लिश करेंगे, और नहीं भी लगती है तो आपकी इससे क्या होगी, आपकी इसकी राइटिंग की स्किल्स जो आपकी वो अपग्रेड होगी ना, डेवलप होगी। तो हमें तो वही करना है ना, तो इसीलिए आप इस तरह से लिखना शुरू कीजिए। डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो लिखा ही कीजिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताई है वो है ब्लॉगिंग। तो अगर आपको प्रोफेशनल वे में ये सब चाहिए तो आप क्या कीजिए, स्टार्ट राइटिंग योर ब्लॉग्स। आई मीन बी इट ऑन एनी सब्जेक्ट, इधर कुकिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आप अपने ब्लॉग्स पे लिखिए। आप रजिस्टर कर लीजिए ब्लॉग स्पॉट पे या वर्डप्रेस पे या किसी भी अपनी पसंद की साइट पे कीजिए और स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बिकॉज ब्लॉगिंग आई थिंक आर मोस्ट ट्रेंडिंग राइट नाउ, एंड यू नो if you want name and fame, it's very like good platform and it's quite fun also, so you will enjoy it if you. Now the next thing is that that also I really love, and that is something else, cooking. See, cooking is like love, you know, you really love to make something special or for someone special, या अपने लिए भी पता है बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो like I don't like to cook regular food, I like to cook like something different, try something new and doing some experiment. But even, you know, if you don't like cooking, I'll advise you to learn that basic regular food. I mean dal, rice, chapati, at least उतना आप सीख लीजिए। Because right now अगर if someday you stuck and there is no one around you, I mean कभी ऐसा situation आ जाता है तो आप कितने दिन बाहर का खाएंगे। And obviously अभी तो ऐसा situation है कि we should avoid outside food as much as possible, ठीक है। तो आप वो बेसिक स्किल्स तो कुकिंग के सीख लीजिए, और तब अपने आप को ये भी कह सकते कि वो I'm आत्मनिर्भर। Just kidding, okay? So yeah, so learn that basic skills, because I feel right now it's better to make a pizza at home rather to order pizza online. ठीक है, now the choice is yours. ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक ऐसा कोई स्किल, मतलब एक ऐसी यू नो हॉबी, ऐसा कुछ डेवलप कीजिए, जैसे कि कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, या फिर स्केचिंग, जुम्बा, स्केटिंग, मतलब कोई बेसिक आइडिया ये है, एक ऐसा स्किल जिसको आप आगे जाके क्या कर सके, चाहे तो किसी तरह के प्रोफेशन में भी कन्वर्ट कर सके। तो ऐसा कुछ आप सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हमारे इंडिया में मोस्टली होता है कि हमेशा ये देखा जाता है कि आप अर्न किस तरीके से कर रहे हो, आपका काम करना क्या है, जबकि आउट ऑफ इंडिया क्या होता है, वहाँ काम करना जरूरी है, वहाँ ये नहीं देखते कि आप कौन से तरीके से कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वो लोग तो हर काम कर लेते हैं, और हमारे यहाँ हर चीज में सोचा जाता है कि पहले लायक है कि नहीं, हमारे यहाँ इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। बट अब जो ऐसी सिचुएशंस है, आई थिंक उसके बाद तो हालात चेंज होंगे हम लोग। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग दैट मैं भूल गई बताना, कि स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन ऑल्सो। I mean it really helps. मतलब see, your physical health is important, but as well as your mental health is also important. And मैं खुद इनिशियली सोचती थी कि I can't do meditation, मुझे लगता था कि मैं तो सो जाऊंगी मुझे, but when I started doing it, I really enjoyed it. और अब ऐसा होता है कि अगर मैं कभी नहीं करती हूँ किसी दिन तो मुझे अच्छा लगता भी नहीं है। तो आप भी कंसिस्टेंटली बेसिस पे जब करेंगे, I'm sure you really gonna love it. And yeah, you can also help your mom in her household. I know it's not quite something productive, but yeah, she'll be happy, so you can do that. And now अब खत्म करने के पहले देखिए, मुझे सिर्फ एक चीज कहनी है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि हम लोग humans हैं and we are powerful, we can conceptualize the things. But having said that, I just want to say that we humans are losing our humanity at some point. And I hope कि आप इससे agree भी करेंगे। तो हमें कोई राइट नहीं है टू हार्म एनी क्रिएचर और नेचर देयर आउट। सो यू नो, कीप अलाइव दैट ह्यूमैनिटी इनसाइड यू, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। प्लीज बी मोर ह्यूमन, बी मोर काइंड एंड मोर जेंटल, ठीक है। एंड या, इफ यू लाइक माई वीडियो, देन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एंड या, आई एम गोइंग टू मेक मोर सच वीडियोज
So to get all the updates, subscribe to my channel, share it with your friends and family. And yeah, one more thing, that do let me know that what are the things that you like the most from the video in the comment section, and also tell me that what are the other things that you are doing at your home. I would love to hear from you people. Okay, मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में. So till then, bye bye, take care, bye.